डन। दोस्तों नमस्कार। आज हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लास है और हम 2016 है ना कि 13 का है ना, 2013 का नहीं है, 7 का है। ये वाला कौन सा है? मेरे हाथ में दूसरा है, सॉरी। 2000 कितने का? 7 का है। 2007 का जजमेंट एमपी का है, छत्तीसगढ़ का? अरे तो पेपर तो एमपी का है ना, पेपर एमपी का है। हाँ तो ये बोलो ना, ठीक है। 2007 का जजमेंट है हमारा, एमपी सीजे है ना कि छत्तीसगढ़ सीजे? दोनों। ऐसा नहीं है, है ना। चलिए, तो हुआ क्या था आशीष, यहाँ आके एक बार रीड करना जिसको सबको पता चले। ये लो, आराम से आना। और रीड करो। स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में पढ़ दोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उल्टे सीधे वर्ड आपको जज बनना है, हिंदी में क्या लगाओ। चलो इंग्लिश का देते है, इंग्लिश वाला। हाँ तो इंग्लिश वाला पढ़ लो यार। लो, मतलब ज़्यादा लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। Good evening, everyone. Today class is judgment writing. Case हाँ हाँ, uh, frame the charge and write the judgment on the basis of the allegations and evidence given her under by allegations. The evidence keeping in the mind the relevant provisions on the concerning law. Prosecution case on 15 June. 15 June 2007 at about 11 p.m. Complaint A was sleeping in his open veranda in Vinoba Nagar under police station. Tar Bahar Bilaspur. Suddenly someone struck on the head. He got up and saw B was running with the knife in his hand. Arise an alarm and his nightbird C come running. They chased B and caught him. At about 11:30 p.m., complainant A lodged a report in police station Tarbahar that on account of old enmity, B had attacked A. That blood stains were found on the cloth of B. Knife and blood stained cloth were seized from him. On medical examination of B, incised wound was found over the forehead. Injury was caused by a sharp-edged weapon, was simple in nature. On criminal examination, presence of human blood was confirmed on the cloth and knife covered from B. Statement under section 161 CRPC were recorded. After complaint of investigation, charge sheet was filed. Defense plea. Accused B, on being charged, abjured his guilty and plead innocence. Evidence for prosecutions. Evidence was accused on behalf of the prosecution, which sustainably supported the prosecution case in court. A stated that on 15 June 2007 at about 11 p.m. he was asleep in open veranda. Suddenly someone struck on his head. He got up and saw V was running with a knife in his hand. He raised on alarm and his neighbor C come running. They chased B and caused him. On account the old enmity, V assaulted him with knife. In cross-examination, A admitted that he had no seen accused inflicting injury
and also admitted that accused is his younger brother. She stated that he saw B running with knife and caught him. There was an injury on the forehead of A. He also saw blood stain in the cloth of B. Doctor who had examined A given detail of injuries sustained by A, but denied the possibility that the injury was may caused by fall. The investigation officer was detailing of first information report logged by A. He also given detail of knife and cloth recovered from B. A being examination under section 313 CRPC, the accused stated that he was innocent and had been falsely implicated on account of old enmity. Accused did not given any examination regarding the presence of human blood of knife and clothing seized from him. Evidence evidence for defense. Accused did not produce any evidence in defense. Argument of prosecutor. On behalf of prosecutor argued that on the basis of evidence acquired, prosecution has proved guilty of the accused beyond the shadow of responsible doubts. Argument of defense counsel. On behalf of accused, it has been argued that there is no evidence that anybody saw the next. हो गया? Yeah. Accused inflict, ये वाला? Accused inflicting the injuries. Criminal examination report is not sufficient to hold the accused guilty. Accused is innocent and 20 years of age and only beard earn of family. On account of old enmity, he has been falsely implicated. डन हो गया? हाँ, चलिए। Thanks. देखो जजमेंट राइटिंग इनने पढ़ी, ठीक है। अब इनने पढ़ी तब भी पढ़ने में सिर्फ इतना टाइम लगा। ये टाइमिंग का क्या है, अगर आपको फोर्थ पेपर निकालना है तो पहली चीज़ तो आपको टाइमिंग देखनी है, क्योंकि आपको 2 पेपर सॉल्व करना है, एक सिविल का और एक क्रिमिनल का। तो अगर टाइमिंग का इशू रहेगा तो आपको लिखना भी 14-15 पेज है, ये मान के चलना है ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत शॉर्ट में लिख दो और उनको समझ में आ जाए, है ना। तो पढ़ने की स्पीड के साथ साथ आपकी फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 3-4 चीज़ें आपको जजमेंट राइटिंग में देखनी है। जनरल तौर पे सभी को पता है, जो देख रहे हैं लेक्चर भी देख रहे हैं और आप लोगों को भी मैं बता चुका हूँ कि जजमेंट राइटिंग के लिए आपको एक होता है पूरा फॉर्मेट, जो कि मैं बता चुका हूँ। 5 पॉइंट में आपका फॉर्मेट आ जाता है और फॉर्मेट आप ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में भी आप कवर कर सकते हो, है ना। लेकिन जो उसकी रीजनिंग होती है, जो उसका अप्रिसिएशन होता है, जो उसकी मार्शलिंग होती है, इसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। खासकर मार्शलिंग क्या होती है, मार्शलिंग आपको पता है कि किसने क्या बोला, ये वाली चीज़ें लिखनी रहती है। अप्रिसिएशन क्या होता है, ये होता है कि आपके बोलने पे किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं या रिवर्ट कर रहा है या वो सपोर्ट कर रहा है, या उस चीज़ पे कोई एविडेंस जो आप बोल रहे हो उस पर कोई एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये होती है जजमेंट राइटिंग की थोड़ी सी बेसिक, है ना। अब जैसे कि 2007 का जजमेंट देख रहे हैं, है ना। 2007 के जजमेंट में अगर मैं हिंदी में अब इसको रीड करूं, जो हिंदी है, ठीक है, इसमें लिखा अभियोजन का प्रकरण 15/5/2007 की बात है। रात को 11 बजे परिवादी आप थाना तार बहार बिलासपुर के अंतर्गत विनोबा नगर है, ठीक है, अपने खुले बरामदे में। मतलब अगर पहला टॉपिक अगर पूछा जाए कि व्यक्ति कहाँ था, मतलब जो परिवादी है वो परिवादी कहाँ मिल रहा है आपको, बरामदे में। और बरामदा 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका खुला और एक होता है आपका बंद, ठीक है। बरांडा, बरांडा खुला और बंद से क्या मीनिंग होती है, सबसे पहले तो इस पे बात कर लें। प्लेस पे तो बात कर ही लेंगे कि प्लेस भैया वो उसने बता दिया विनोबा नगर में वो खुले में सो रहा था, ठीक है। तो कहाँ सो रहा था, वो बरामदे में, मतलब ये घर तो नहीं है, घर तो नहीं है। तो घर के अंदर बरामदा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। एक बरामदा ये बाउंड्री बना के भी बना सकते हैं और जिसमें वो अपनी गाड़ी वाड़ी रख सकता है और वो घर के अंदर ही माना जाएगा और वो घर ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें सीधा सीधा लिखा है ओपन बरांडा। और ओपन बरांडा पे बात करते हैं, मतलब ओपन बरांडा का मीनिंग क्या बताया था मैंने,
बताओ जो जजमेंट राइटिंग पढ़ चुके हैं। मतलब बाहर, ठीक है, मतलब खुले में सो रहा था वो व्यक्ति, ठीक है। अब इस पे दो चीजें देखने मिलती हैं। पहली चीज पोजीशन, एक क्वेश्चन का मैं बताऊं कि पोजीशन, अब ये बरामदा किसी का भी हो सकता है, खुला है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है जिसने उसको मारा जो स्टोरी में अभी आएगा उसका बरामदा हो सकता है, लेकिन उस पे सो रहा है, ऐसा है, ऐसा पढ़ा तुमने अभी कुछ मिला ऐसा, ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन हो सकता है, प्रिजम्पशन तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है। अपना अपना ओपिनियन रहता है जजमेंट राइटिंग में। मैं आप लोग जो वहां बैठे भी सुन रहे होंगे वो अपने ही तर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे तर्क हैं, ठीक है। आप लोगों के भी तर्क अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग क्या है, एक कला, और ये कला अपनी खुद की होती है, दूसरे की चुराई नहीं जाती। पहली चीज तो मैंने तो ये बोला कि भैया ये परिवादी है, ये क्या है, आपका विक्टिम व्यक्ति है जिसको चोट लगने वाली है, जब आगे की मैं स्टोरी पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये बरामदा, और बरामदा पे एक क्वेश्चन निकलेगा आपका पोजीशन का, दूसरा आपका निकलेगा ओपन है। ओपन है मतलब किस तरीके का है, जब आगे पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या लिखा, बरामदे में सो रहा था, अचानक ही किसी व्यक्ति ने उसके सर पे प्रहार कर दिया। अब मेन चीज, जो जो पॉइंट इसमें बोले जा रहे हैं, सबसे पहले जजमेंट राइटिंग लिखने के पहले आपको उन पॉइंटों पे फोकस करना है। पहला आपको डिस्कशन करना पड़ेगा बरामदे पे, और बरामदे पे डिस्कशन होगा पोजीशन पे कि वो बरामदा पोजीशन में था कि नहीं था। दूसरी चीज, आपको जो किसी व्यक्ति ने कहा मारा, सिर पे, मतलब आपकी चोट पे क्या होगा, बात होगी कि चोट कैसे लगी, चोट गंभीर है नहीं है, जो आगे अपन को देखना है, ठीक है। मारा किसने, ये भी है एक पॉइंट, ठीक है। किसी ने मारते हुए देखा, किसी ने उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा, या गाली गलौज हुई बीच में कि नहीं हुई, कोई पर्सनल दुश्मनी थी कि नहीं थी कि जिसके पीछे उसको मारा गया। जैसे कि परसों का एक केस, 302 का एक केस था, ठीक है। उसमें 8 लोग कौन थे, चोरी करने वाले व्यक्ति थे, है ना। कितने थे चोरी करने वाले व्यक्ति, कितने, 8 लोग थे, जिसमें से जिसको डिफेंस, जिसको मतलब जो एक्यूज पर्सन है, जिसको बचाना है, ठीक है, वो कौन है, वो एक भैया, एक डी नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, डी नाम का एक व्यक्ति है। अब वो क्या, चंदन के पेड़ की चोरी करने ये लोग जाते हैं। अब चंदन की पेड़ की चोरी करते टाइम 2 भाई रहते हैं उस घर में, कितने भाई, 2। अब कुछ हलचल होती होगी, एक को, बड़े भाई को आवाज आ जाती होगी और वो बाहर आता होगा, उनके बीच क्या झड़प होती होगी, और जो डी व्यक्ति है वो तो अपने चंदन का पेड़ काटने में बिजी, मतलब पेड़ पे चढ़ गया था। इतने में उनके बीच झीणा झपटी होती है, और वो क्या होता है, धक्का वक्का दे देते हैं और ऊपर से कार चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब उसमें सब लोग फंसते हैं, फंसते कि नहीं फंसते। अब आपसे एक को बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा है उसकी क्या गलती, वो तो चोरी करने के इंटेंशन से आया था, मर्डर करने के इंटेंशन से आया, चोरी करने के इंटेंशन से आए थे। और अब ये दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि वो 4 लोग जो हैं, उनने जिनने मारा, तो चोरी के साथ साथ मर्डर का भी इंटेंशन था क्या उनका, मतलब 8 लोग, डकैती हो गई ना, ये तो 5 से अधिक व्यक्ति, है ना, तो डकैती सहित हत्या हो गई, 396 लगा सीधा सीधा, समझ रहे बात को। तो ये जो क्वेश्चन अराइज होते हैं दिमाग में, ये आपको सोचना है, क्योंकि आपको जजमेंट राइटिंग लिखना है, और जिस चीज को प्रूव करोगे उसी के बिहाफ पे आप इक्विटल और कन्विक्शन आप डिसाइड करोगे, है ना। अब जैसे कि अभी पहली चीज बरामदा मिला, दूसरी चीज हमें चोट मिली, और चोट भी कहाँ मिली, सर पे मिली, कहाँ मिली, सर पे मिली, ठीक है। अब वह जाग उठा, अब देखो मारा तो अच्छे खासे की नींद खुलेगी, सोएगा नहीं, या तो ऐसा मारो कि वो सो जाए, या तो ऐसा मारो कि कभी ना उठे, है ना। तो इसमें क्या, सर पे मारा, इसका मतलब वो जागा। अब जागा और उसने देखा कि बी अपने हाथ में चाकू ले भाग रहा था, बी अपने हाथ में, उसको मारा और वो दौड़ लगा के भागा, और परिवादी ने जैसे ही चिल्लाया, चिल्लाने के बाद उसका जो पड़ोसी सी है, उसके बाजू में जो रहता था, वह दौड़ता हुआ आया, क्या आया, वो दौड़ता हुआ आया, और क्या, उसने बा का पीछा किया और उसको पकड़ भी लिया। अब पकड़ लिया, बात कितने बजे की थी, 11 बजे की। देखो पकड़ा 11:30 बजे, कहाँ एफआईआर लिखवाई, 11:30 बजे एफआईआर लिखवाई, और पकड़ा कितने, और बात कितने बजे की है, 11 बजे की। थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर तो नहीं है, इतना टाइम तो नेसेसरी लग सकता है, लेकिन कुछ कुछ केस आपको ऐसे देखने मिलेंगे जहां पे 11 बजे मारा होगा और अगले 11 तारीख को उनने क्या करी, अगले दिन 11 बजे उनने एफआईआर लिखवाई। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इन लोगों ने थोड़ी बहुत मिलावट अपने में
करी है। मतलब या तो ये फंसाना चाहते हैं या तो ये कुछ और उलझन निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की बात आपको अपने केस में, आपको जब भी जजमेंट राइटिंग और भी पढ़ोगे, इसमें तो ये सिंपल है ना। अब इसके बाद क्या लिखा कि दर्ज कराई और उसमें कारण सिर्फ एक ही बताया कि इसकी पुरानी शत्रुता थी इसलिए मुझे मारा गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपकी अभी लाइन है, अभी अपन को इस पे डिस्कस करना है। ठीक है क्लियर कि नहीं? इतना पहली चीज। अभी इसमें से 3-4 चीजें निकालूंगा मैं, है ना। देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, बेसिक स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति होते और एक को पकड़ के मार रहे होते, तो मेन दोषी कौन था? जो मारने वाला है कि जो दो पकड़े हैं वो? दोनों ही होते ना। जो पकड़े हैं, जो पिटवा रहे हैं वो भी होते और जो मोहन मार रहा है वो भी होते। अभी चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अभी चार्ज बनाना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि जजमेंट राइटिंग में सोचना कैसा है ना, लिखना तरीका, ये सब अपन एक ही क्लास में तो नहीं सीख पाएंगे, क्लासेस लगेंगी ज्यादा। ठीक है, चलिए तो देखो समझो बात को। अब पहली चीज, एक तो मिला हमें, पहले स्टोरी पढ़ने पे बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, एक तो हमें क्या मिला? बरांडा मिला। और दूसरी चीज हमें क्या मिली? एक हमें इंजरी मिली, है ना, कि इनको चोट तो लगी है। और वो चोट कहाँ लगी है? सर में वो चोट लगी है। और हाथ में क्या मिला? हथियार भी मिला है। जब उसकी नींद खुली तो हथियार क्या था? चाकू था। और कौन से पर्सन के? बी के। ठीक है, चिल्लाने पे कौन आता है? और सी ने किसने पकड़ा है? सी ने पकड़ा है। ये जब आप जजमेंट राइटिंग लिखो तो ये जो पॉइंट की वर्ड रहते हैं ये निकाल के रखना। और डेट टाइम तो लिखना ही लिखना है, डेट टाइम को भूलना नहीं है। जब जजमेंट राइटिंग का जब पैटर्न देखेंगे तो डेट टाइम एक ही बार आपने लिख दिया कि हाँ इतनी तारीख, इतना ये फलाना ठिकाना, इतनी तारीख को एफआईआर हो गई। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही है, एड्रेस वगैरह ये तो कॉमन सेंस रहता है। ठीक है, अब ये 3-4 चीजें आपकी आंखों के सामने, ये आपको स्टोरी, जब तक एफआईआर नहीं हुई है तब तक की स्टोरी है। 11 बजे की घटना है और 11:30 पे क्या हो गई है? एफआईआर हो गई। ठीक है, क्लियर। अभी कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि हाँ दोषी है, एफआईआर लिखवा दी, मतलब इंसान की मेंटलिटी क्या हो जाती है? अरे मारा है, सर में चोट है, पक्का इसने मारा होगा। और जो एफआईआर में लिखवाया, क्योंकि एफआईआर पढ़ने के बाद और चोट देखने के बाद लोगों को यही यकीन हो जाता कि मारने वाला व्यक्ति यही है। जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कभी कभार, क्योंकि बहुत से केस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें दोषी कोई और होता है और फंस कोई और जाता है। ठीक है, लेकिन आपको भी इसी तरीके से सोचना है, एक बार में बचाना है और दूसरे बार में फंसाना है। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं। बी के वस्त्रों पर धब्बे पाए गए। ठीक है, कपड़े, सबसे पहले 5वें में क्या लिख रहा है आपके? कपड़े। अब ये कपड़ा है और कपड़े पे क्या पाया गया? ब्लड। क्या पाया गया? ब्लड। अभी इसी में से एविडेंस आप लोगों से लिखवाऊंगा कि क्या एविडेंस निकल रहा है। ठीक है, पहली चीज, अब चाकू और रक्त दोनों सने हुए थे, मतलब आपके जो चाकू पे भी है इस पे भी क्या है? इस पे भी ब्लड है, कपड़े पे भी ब्लड है। चाकू मारा, सिर पे लगा, सिर का खून कपड़े पे आया होगा, वास्तविकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला कि आज किसी जांच पर उसके माथे पर उत्कीर्ण घाव पाया गया। अब जो ए व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, मतलब इसको अब मैं विक्टिम बोल दूं, अभी मैं कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ना प्लेंटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, ना आपका एग्रीव्ड पर्सन यूज कर रहा हूं, ना डिफेंडेंट कर रहा हूं, ना एक्यूज पर्सन यूज कर रहा हूं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, अभी वर्डों पे ना जजमेंट राइटिंग की कोई भी चीज पे अभी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये विक्टिम कहाँ गया था? अभी हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल। तो ठीक है, तो अधिकारी होता है ना वहां पे। ठीक है, तो उसने क्या बोला? इसके सर पे एक क्या है? घाव, मतलब बूंस है। ठीक है, एक चोट लगी है, कहाँ लगी है? सर पे लगी है। उपस्थित तेज धार वाले हथियार से कारित की गई थी। इन्होंने क्या बताया? जो ऑफिसर थे यहाँ के, इन्होंने बताया कि भैया इसको तेज धार वाले हथियार से मारा, नुकीली चीज है, कोई तेज धार वाला है। और जबकि इनने क्या देखा था? चाकू देखा था। देखो डिस्प्यूट तो यहाँ पे भी हो सकता है सर पे चोट लगी, चाकू देखा हो नहीं देखा हो, पहली चीज।
स्टोरी में बोला गया है कि चाकू जब्त हुआ, हो सकता है कि किसी और चीज से मारा हो, चाकू जो आपने जब्त किया वो किसी और चीज का, ब्लड जो है वो ब्लड इंसान का ना हो, उस चाकू पे ब्लड हो सकता है किसी और चीज का भी हो, है ना। सोचना है आपको, आपको अभी वेरीफाइड नहीं करना कि सर स्टोरी में लिखा है तो स्टोरी के हिसाब से मामला चलेगा, नहीं, अभी आप सोच सकते हो ना, ठीक है। अभी आप बहुत सारी चीजें सोचोगे, है ना। तो पहली चीज ये ऑफिसर है, तो ऑफिसर ने तेज धार वाले हथियार से मारा, ठीक है, ऑफिसर नहीं बोल रहा हूं, ऑफिसर ने बताया कि इसने इसको तेज धार वाले हथियार से मारा गया। अब आगे, लेकिन उसने एक बाद में एक वर्ड लिखाया प्लस करके, उनने बोला कि इंजरी कैसी है भैया, साधारण किस्म की है। कैसी है? गंभीर नहीं है, साधारण। हर्ट है, ग्रेवियस हर्ट नहीं है, ये अपन लगा सकते हैं एक सेंस, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि रासायनिक जांच करने पर वस्त्रों और बीज से जब्त चाकू पर मानव रक्त की पुष्टि होती है। मैंने पहला क्वेश्चन यही बोला था कि जो ब्लड हो सकता है वो जानवर का हो सकता है उस चाकू पे, उस कपड़े पे, लेकिन उसके बाद इन्हीं ने, ऑफिसर ने बताया कि नहीं, जो हमें ब्लड पाया गया वो क्या है, ह्यूमन ही है। इन्हीं ने बोला, हमने तो नहीं बोला, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, आगे बोला कि भैया हमने इसके स्टेटमेंट भी, और स्टेटमेंट कौन लेता है, 161 के सीआरपीसी जिसने पढ़ी है, आयु इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, है ना। तो 161 में अब आपके एक आयो देखने मिलेंगे, है ना। अभी देखते जाना, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए। एक तो आपका एग्रीव्ड पर्सन है, एक तो आपका आई विटनेस है जिसने भागा और उसने पकड़ा है, ठीक है, और एक आई विटनेस खुद है जिसने चाकू से उसको मारा और उसकी आंख खुली और चाकू से भागते हुए वो भी देखा, तो ये भी एक खुद विटनेस बना, ठीक है। और एक आपके आयु है जिनने वो कपड़े जब्त किए, जिनने वो चाकू जब्त किया, 27 का मेमो जिनने बनाया, तो वो आयो है। जिसके पास एमएलसी रिपोर्ट के लिए, एमएलसी रिपोर्ट के लिए गए, जांच के लिए गए, वो आपके चिकित्सक ऑफिसर, है ना, मेडिकल ऑफिसर, वो भी आपका क्या है, एक आपका विटनेस ही बन रहा है ना, एविडेंस है ये भी, है ना। तो ये सब गवाही देने आपके कोर्ट में आएंगे, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना। तो एक आयो बने, और आयु ने क्या किया, 161 का आपका स्टेटमेंट लिया, क्या करे, कथन लिए। देखो कथनों का अभिलिखित किया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात इनने क्या किया, आरोप पत्र दाखिल किया, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पुलिस रिपोर्ट तैयार हो जाती है, 173 के 2 की हो जाती कि नहीं हो जाती, ठीक है। अब आगे इनने बोला डिफेंडेंट में क्या लिखा, उसने बोला भैया कि हमें इस चीज का दोषी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष। एक ही चीज बोली उसने कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, निर्दोष। ये आपकी क्या थी, ये आपको उस टाइम पे जब भी आप जजमेंट पढ़ो, अभी ना मैंने वर्डों का यूज किया है कि जजमेंट में लिखना कैसे है, ना मैं ये बता रहा हूँ कि जजमेंट में होता क्या है, ना मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ स्टोरी में अपन ने निकाला है और उस पर विचार किया है कि जो जो एफआईआर है, ये एफआईआर सही जा रही है कि नहीं जा रही है। अभी आपको पढ़ने पे कैसा समझ में आ रहा है कि ये सही जा रही है कि नहीं जा रही है, एफआईआर अकेली। अभी मैं एविडेंस स्टोरी पढ़ूंगा ना तो आप थोड़ा सा, है ना, एविडेंस में सीधा बोल देता है ये तो मेरा भाई, मैं तो गिरने से चोट लगी मुझे, आगे है ना ऐसा ही, तो फिर थोड़ा सा घबराओगे कि यार ये ऐसा कैसे, और उस चीज को लिखना जजमेंट राइटिंग में थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये है कितने पेज का, 2 पेज का, लेकिन हमें लिखना कितना है, 12 पेज, लगभग 12 पेज अगर मैं बोलूं तब भी, है ना, 5 पॉइंट के अलावा जो पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अब पहली चीज, एफआईआर पे हम भरोसा कैसे करें, हो सकता है ये बरामदा दूसरे का हो और उसके बरामदे पे सो रहा हो, कोई दुश्मनी पहले से हो और वो सोचा उसको उठाता हो रोज, लेकिन वो नहीं उठता हो, तो उसने गुस्से में आके इसको मार दिया, ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। पहली चीज, हो सकता है कि वो नशे की हालत में उसने देखा नहीं कि मेरे हाथ में चाकू या डंडा है, ये भी वो डिफेंस ले सकता था, लेकिन उसने लिया नहीं। जब उसने लिया नहीं तो अपन इतना क्यों सोचे, उसने सीधा बोला ना, अभिभाषक क्या उसने प्लीड किया, उसने प्लीड यही किया कि मैं दोष नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। अब भैया तुम दोषी नहीं हो, निर्दोष हो, तो तुम कुछ तो बोलो। अब जब बोलेगा, जब एविडेंस में पढ़ेंगे, जब देखते हैं, है ना, अभी तो अपन सोच रहे हैं। उसके बाद चोट लगी तो चोट हाथ पैर में नहीं लगी, सिर्फ कहाँ लगी है, सिर में लगी है। अब जिसकी आईपीसी की पकड़ होगी तो वो बता देगा कि सिर कहाँ आता है, और सिर पे अगर चोट लगती है
तो वो कहाँ जाता है ना। जिसने भी 320 के 8 पॉइंट पढ़े होंगे वो आराम से बताएगा कि उसका 6th पॉइंट या 7th पॉइंट में ये वाली चीज़ लिखी है कि सिर पे आप, है ना, तो ये वाली चीज़। लेकिन अगर आपने ये वाली चीज़ भी पढ़ ली और आप सिर से आप 320 पे पहुंच भी गए, चलो पहुंच गए, आप 320 पे पहुंच गए, और आप चलो रॉन्गफुली पोजीशन, आपने क्या किया, रॉन्गफुली पोजीशन आप कर रहे थे, चलो मैंने माना आपका पोजीशन लॉफुली था, आप अपनी बरामदे में सो रहे थे, तो सामने वाले व्यक्ति तो घुसा ना आपके बरामदे में, विदाउट परमिशन घुसा ना, तो ये क्या था, क्रिमिनल ट्रेसपास कि हाउस ट्रेसपास? हाउस तो नहीं था, खुला बरामदा है, तो कौन सा था, अतिचार था ना, ये क्रिमिनल ट्रेसपास था। तो आपको फिर कहाँ, चलो आप फिर 441, अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी पनिशमेंट नहीं है ये डेफिनेशन की बात चल रही है, पनिशमेंट के अलग सेक्शन 447, जैसे इसका 323 24 पे आप जाओगे, है ना। चल अब बात करते हैं हथियार पे, तो हथियार पे भी मैं बात करूं कि हथियार, तो ये चाकू है, क्या है ये, चाकू। अब चाकू से बूंस भी अलग टाइप के बनते, 5 तरीके के बूंस बनते हैं, है ना। डंडे से मारोगे तो अलग बूंस बनेगा, कुल्हाड़ी से मारोगे तो अलग बूंस बनेगा, आप चाकू से मारोगे तो अलग बूंस बनेगा, आप पेचकस से मारोगे तो अलग बूंस बनेगा, है ना। इस तरीके के 5 तरीके के बूंस के टाइप होते हैं। उसमें से एक आपका डॉक्टर क्या बता रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि तेज धार वाले हथियार से बना है, लेकिन इनको सिंपल इंजरी हुई है, मतलब थोड़ा सा कटा है, ठीक है, मतलब इनको इंजरी कैसी हुई है, साधारण किस्म की, हर्ट अकेला हुआ है, सिंपल इंजरी नहीं होती, वो उसको हर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्ट, मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, हर्ट हुआ है, पहली चीज। अब ब्लड की पुष्टि हुई कि ब्लड कौन सा था, ह्यूमन था, क्योंकि अपन को डाउट आ रहा था पढ़ने पे कि भैया ऐसा ना हो फंसाने के लिए इनने किसी का चाकू के पे ब्लड लगा के ले आए, तो ब्लड भी इनने बता दिया ह्यूमन का, तो थोड़ा बहुत रिलाई तो हो रही ना स्टोरी कि इनने जो एफआईआर लिखवाई वो ठीक है। जाति दुश्मनी हो सकती है, एक ही क्वेश्चन निकल रहा है कि यार दुश्मनी जाति है कि सिर्फ और सिर्फ कि इसकी कोई गलती थी कि ये वहां जाके सो रहा था। तो पहला क्वेश्चन पोजीशन, पहला क्वेश्चन क्या निकला, पोजीशन के पोजीशन किसका है, आपका है कि उसका है, कि आप अपने बरामदे में सो रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या निकला, सर पे, तो सर पे आपको जब स्टोरी पड़ी तो मतलब हर्ट ही हुआ है, आपको ज्यादा चोट लगी नहीं, ये वाली चीज तो इसी में आ रही है, ठीक है। तीसरी चीज, चाकू से ही मारा है, ये भी पुष्टि हो गई, क्योंकि जब्त हुआ है चाकू, जब्त हुआ है और चाकू पे ही ह्यूमन का ब्लड पाया गया है, तो थोड़ा सा ये वाली चीज अभी 50-50 चलने देना। और सी ने पकड़ा, तो सी ने, अब सी क्या बोलेगा आगे, ये अभी सी के स्टेटमेंट आए कहीं, अभी तो नहीं आए, तो सी पे अभी क्वेश्चन लगा के रखना थोड़ा सा, और इसके कपड़ों पे तो ठीक है, बढ़िया है। चलो अब मैं आगे फिर पढ़ूंगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अब एविडेंस की बात कि भैया प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या एविडेंस दिए हैं। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिए हैं, पहले चीज तो अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किया गया जिससे अभियोजन प्रकरण का पर्याप्त रूप से समर्थन हुआ, पहली चीज ही बोल दी, पहली चीज आपके जजमेंट राइटिंग में सपोर्ट के लिए क्या बोला उनने कि इनने जो एविडेंस दिए और उन एविडेंस का सपोर्ट मिला किसको, प्रोसिक्यूशन को। जैसे कि इनने जो एविडेंस दिए कि भैया चाकू, इनने एविडेंस दिए कपड़े पे ह्यूमन के ब्लड के निशान, मतलब ब्लड किसका, ह्यूमन का, ठीक है, और सिर पे चोट, मतलब ये सब क्या है, ये आपके एविडेंस ही दिए इनने, और उससे क्या सपोर्ट मिला थोड़ा सा। अब न्यायालय में आने, मतलब ए व्यक्ति ने 5/15/2000, मतलब 15/5/2007 को रात्रि 11 बजे अपने खुले बरामदे में सो रहा था, फिर से एविडेंस की चल रही है ये कहानी, ठीक है। अचानक किसी व्यक्ति ने सर पर प्रहार किया, वह जाग उठा, उसने देखा कि वह, अब देखो कोर्ट के सामने दो तरीके से आपको पता है, एक सीआरपीसी जब पढ़ते हैं तो एक अपने पुलिस के सामने स्टेटमेंट होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, होते कि नहीं होते, और एक आपके कोर्ट के साक्ष्य होते हैं, ठीक है, जो आप कन्फिश वगैरह करते हो या स्टेटमेंट कन्फेशन 164 जब आप आता है तो वो कोर्ट के समक्ष होता है, ठीक है। और एक और आपका होता है 167 में, जिसके हिसाब पे सामने वाले को क्या मिल जाती है, आपकी बेल मिल जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि आपने इसको मारा था, अरे आपने अगर नहीं मारा तो आप बोल सकते हो मारा था कि नहीं मारा था, लेकिन अभी ये सब चीजें बाद में, ठीक है। देखो अब क्या बोला कि पूरी स्टोरी वही है, पड़ोसी आया, दौड़ता हुआ आया, उसने बाप पीछा किया, पकड़ लिया, पुरानी शत्रुता बी के कारण उस पर चाकू से हमला किया था, प्रति परीक्षण। अब ये दो तरीके के एग्जामिनेशन, अब जब कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में होता है पहले चीफ, फिर होता है क्रॉस, और फिर होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ठीक है, ये 3 तरीके की एग्जामिनेशन आपके चलते हैं।
चीफ में तो उसने क्या बोला, चीफ में सीधा सीधा जो ऊपर की स्टोरी लिखी वही है, लेकिन फिर उसमें क्या लिखा, क्रॉस में इनने क्या बोला, प्रति परीक्षण जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो बोला कि आ ने यह तो स्वीकार किया कि उसने बी को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा। आ ने यह स्वीकार किया कि उसने बी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा क्योंकि वह उसका छोटा भाई है। पहली चीज, एक डिस्प्यूट, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेशन पॉइंट बनाओगे तो डिटर्मिनेशन पॉइंट में आपको यही सब चीजें लिखनी पड़ेंगी जो आपके दिमाग में जा रही हैं कि उस पर ये वाली सेक्शन लग रही है कि नहीं लग रही है, चोट इस व्यक्ति ने पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है, ये वाली चीज इसकी कोई जाति दुश्मनी थी कि नहीं थी। अभी देखो ऊपर चीफ में क्या बोला कि इनकी क्या थी, आपस में शत्रुता थी, लेकिन दूसरे वाले में क्या बोल रहा कि नहीं, क्रॉस में क्या बोला, क्रॉस में बोला ये तो एक्सेप्ट ही कर लिया क्रॉस में, और क्रॉस में एक्सेप्ट ये किया कि बी ने नहीं मारा, किसी और ने मारा, ऐसा बोला क्या, बी ने नहीं मारा किसी और ने मारा, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। आगे देखो क्या लिखा, स्वीकार किया कि बी को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा, बी उसका छोटा भाई है, और शाह ने यह अभिकथन किया कि उसने बी को दौड़ते हुए देखा था, जबकि सी ने क्या एक्सेप्ट किया, ये ए ने किया। सी ने बोला कि मैंने बी को पकड़ा, ऐसा लिखा है क्या, एक बार देखो अपने उसमें, बी को पकड़ा उसने कि नहीं पकड़ा, बी को पकड़ा उसने, सी ने बी को पकड़ा, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है थोड़ा सा। अब समझो बात को, ए ने एक्सेप्ट करा, क्या एक्सेप्ट करा कि बी ने मुझे नहीं मारा, लेकिन जो सी जब आवाज चिल्लाने पे जब उसको जो आवाज आती है, सी ने देखा कि बी भाग रहा और बी को पकड़ा। अब जिसको मारा है वही बदल रहा है, कहां बदल रहा है, क्रॉस में, और जबकि सी क्रॉस में क्या बोल रहा, पहले भी सही बोल रहा था और अब भी सही बोल रहा था, प्लस माइनस का है, मतलब इसके +2 चल रहे हैं और इसके एक माइनस हो चुका है, समझ गए, मतलब ये हॉस्टाइल होने की पूरी कंडीशन में चल रहा है, और इसका पूरा चल रहा है क्या, +2 चल रहा है। अब आगे की कहानी देखो, अभी मैं सिर्फ स्टोरी समझा रहा हूं, देखो क्या लिखा है, दौड़ते हुए भागा, उसे पकड़ लिया, आके माथे पर उपहती थी और उसने बी के वस्त्रों पर रक्त को धब्बों को देखा था और चिकित्सक उसने आँख की जांच की थी। अब देखो डॉक्टर की जांच के बारे में फिर उनने एविडेंस दिए, क्या एविडेंस दिए कि हमने जांच करी और हमने उपहतियों का व्यवहार विस्तार से किया, लेकिन इसकी संभावना इससे इनकार किया कि उसकी उपहति गिरने से हुई है। मतलब इसने एक चीज और बोली, पहली चीज तो मुझे बी ने नहीं मारा क्योंकि बी तो मेरा छोटा भाई है। अब मुझे जो चोट आई है वो कैसी आई है, गिरने से आई है, कैसे आई है, गिरने से, मतलब दो चीजों को उसने निगलेक्ट किया, एक तो ए ने मना किया चाकू से कि चाकू से तो बिल्कुल नहीं मारा, दूसरी चीज बी ने नहीं मारा, एक चीज को बोला कि मेरी चोट कैसे लगी है, गिरने से। ये एक स्टेटमेंट है क्रॉस में, किसमें है, क्रॉस में। सोना नहीं है, वो सो चुका है इसलिए उसको सिर में चोट लगी है, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ, अभी कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है ना, ऊपर का और नीचे का सबका देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके हिसाब से आप ही आंसर दोगे कि सर इक्विटल करूं कि कन्विक्शन करूं, उसको दोष सिद्ध कर दूं कि दोष मुक्त कर दूं। आज बस क्लास में यही, कल की क्लास में आगे की बात करेंगे, ठीक है, कि इसके आगे का सोचना क्या है, ठीक है। चलो पहले तो आपको जजमेंट राइटिंग पढ़ने पे आपको यही समझ में तो आना चाहिए कि मैं इक्विटल के बारे में लिख रहा हूं कि कन्विक्शन के बारे में लिख रहा हूं, यही नहीं समझ पाओगे, लास्ट में इक्विटल कन्विक्शन करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको उस पर बर्डन थोड़ा सा ज्यादा देना जो चीज आप लिखने वाले हो, ऐसा ना हो कि आप इक्वल चल रहे हो और इक्वल चलोगे तो फिर थोड़ा सा उसका बर्डन बढ़ाना ही पड़ेगा जिसपे आप कन्विक्शन कर रहे हो कि कन्विक्शन ही करना है, दोनों के बारे में लिखना है, ये हो सकता था ऐसा, हो सकता था ऐसा, लेकिन लास्ट में आपको यही कंक्लूजन निकालना है कि जो आपका है कि इक्विटल हो रहा है या कन्विक्शन हो रहा है। अभी आधी स्टोरी है, इनने इन चीजों के मना कर दिया, लेकिन सी तो अपनी बात पे खड़ा हुआ है कि सी ने पकड़ा, देखा और भागा, और इसी के साथ एक सी भी अपनी बात पे खड़ा है और एक आपके डॉक्टर साहब भी अपनी बात पे खड़े हैं। डॉक्टर ने पहले भी बोला था कि इंजरी हुई है, कैसे हुई है,
आपकी साधारण हार्ट अकेला हुआ है, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने अभी भी बोला है कि इंजरी हुई है, और वो भी कैसी हुई है, ग्रेवियस हुई है कि हार्ट हुई है, अब बताओ। हार्ट हुआ है, डॉक्टर ने पक्का यही बोला है। अरे इनकार किया उसने, डॉक्टर ने तो मतलब हर्ट हुआ है। डॉक्टर ने भी क्या बोला है पीछे, मतलब डॉक्टर ने क्रॉस में कुछ नहीं बोला, मतलब यही समझेंगे कि भैया क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हर्ट हुआ है। ग्रेवियस हर्ट तो नहीं हुआ, गिरने से तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है, तो आपकी ये वाली बात तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट छिड़ सकता है, अभी अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और लास्ट बोल रहा है आईओ, आईओ ने जो एफआईआर दर्ज करी उसके बारे में भी ब्यौरा दिया, उसको भी बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि कब की क्या कैसा, उसका भी एग्जामिनेशन होता है। और बी से बरामद किए गए चाकू वस्त्रों का भी ब्यौरा दिया, मतलब जब्ती रिपोर्ट जो तैयार की वो पेश कर दी। क्या करी उनने, जब्ती रिपोर्ट पेश करी है। मतलब इनने एमएलसी रिपोर्ट दी है, इनने आपकी 27 की जो रिपोर्ट बनती है जब्ती रिपोर्ट, इनने जब्ती रिपोर्ट दी है, सीज मेमो जिसको बोला जाता है। और सी ने क्या दिए हैं, आपके स्टेटमेंट दे दिए हैं। और अकेला चेंज कौन हो रहा है, जिसको चोट लगी है वही चेंज हो रहा है, बाकी आपके 3 तो आपके सपोर्ट में जा रहा है। क्लियर, 3 सपोर्ट में जा रहे हैं, चेंज कौन हुआ है, आपका मेन व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए, और वही बदल रहा है। अब देखो समझे तो, देखो राजीनामा जब करने जाते हैं, जैसे मेरा ही एक केस था, तो मुझे 4 लोगों ने मारा था कॉलेज लाइफ में, है ना। तो मैंने अभी 3 साल पहले ही राजीनामा किया, मैंने 7-8 साल 6 साल 7 साल उनको घसीटा अच्छे, है ना। तो जब कथन लिखे गए, तो मेरे कोर्ट के सामने ये बोलना पड़ा, जब राजीनामा करने वाला था, तो मैंने बोला कि मेरी कोई मतलब इन लोगों ने मुझे नहीं मारा है। इस तरीके से जब कोर्ट पूछता है कि इनने मारा कि नहीं मारा, मैंने नहीं मारा है, ठीक है। तो फिर आपने उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसी वाद विवाद हो गए थे, तो मैंने एफआईआर लिखवा दी थी, है ना। इस तरीके की थोड़ी सी अपनी बात पे, मतलब वो पूछता जाए, अपन को ना बोलना है, अपन को ये वेरी उधर पे क्लैरिफिकेशन नहीं देना है कि नहीं मेरा तो ये दोस्त था, फिर मेरी ऐसी लड़ाई हो गई थी, वो उस टाइम पे मारा मारी हो गई थी, और फिर मैंने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि ठीक है भैया हमने लड़ लिया, एफआईआर हो गई थी, क्रोध क्रोध में सब कुछ हो गया। ये कोर्ट में नहीं बोलना है, वो फंस जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। मतलब आप किसी चीज को मना कर रहे हो तो सिर्फ नो बोलो, उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट ना करो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, अब 313 होते हैं एक्यूज के स्टेटमेंट, कि जब उसके एग्जामिनेशन किया जाता है 313 में, तो 313 में क्या एग्जामिनेशन हो रहा है, अब देखो समझो उस बात को। क्या लिखा है कि परीक्षा की किसकी, अभियुक्त की परीक्षा की, और अभियुक्त की परीक्षा में, अभियुक्त की परीक्षा में यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है। पहली चीज, अभियुक्त की जब परीक्षा हुई तो यह क्या स्टेटमेंट दिए कि भैया वो क्या है, निर्दोष है। किसने बोला, और यही चीज पहली वाली भी प्लीड करी थी कि वो क्या है, निर्दोष है। 2 जगह एक ही चीज बोल दी उसने, एविडेंस दिया क्या, निर्दोष का। आगे देखो दिया क्या, ये बोला कि भैया पुरानी शत्रुता के कारण मिथ्या अलिप्त किया गया। पुरानी शत्रुता के कारण, मतलब पहली चीज भी यही बोली, ऊपर एफआईआर लिखवा रहे थे कि भैया इन दोनों की क्या थी, पर्सनल दुश्मनी थी, और उनने एफआईआर लिखवा दी कि इसलिए इसने मुझे सर पे चोट मारी। और जब आपका 21% भी यही बोल रहा है कि पुरानी शत्रुता के कारण इनने जबरन मेरा नाम, मारा किसी और ने होगा लेकिन इनने मेरा नाम, होता है ना समाज में ऐसा, किसी की लड़ाई में किसी का भी नाम घुसा देते हैं, है ना। तो उसने यही वाला आपका डिफेंस ले लिया। और अभियुक्त ने उससे अभिग्रहित किए गए चाकू और वस्त्रों पर रक्त विद्यमान का संदेह पर कोई स्पष्टीकरण, मतलब उसने एविडेंस ही नहीं दिया, उसने बोला ही नहीं कि यह चाकू मेरा नहीं है, इस पे ब्लड, मतलब इसने कुछ न वस्त्रों पे, चाकू पे, किसी भी चीज पे नहीं बोला। इसने सिर्फ सिर्फ 2 चीजें बोली कि वे भैया मेरी शत्रुता के कारण ने मेरी एफआईआर लिखवाई, और मैं जज साहब निर्दोष हूं, मैं क्या हूं, निर्दोष। अब आपका लास्ट वाला जो बचाव तर्क है, ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अभियोजन की ओर से अभियोजक को यह तर्क दिया गया कि पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने अभियुक्त को दोष युक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया, मतलब क्या किया, कन्विक्ट किया। तीसरा, बचाव में अधिवक्ता ने क्या बोला, बचाव अधिवक्ता जो रहते हैं, ठीक है, जो आपके डिफेंस काउंसिल की तरफ से लड़ते हैं, डिफेंस काउंसिल जो आपका है, वो बोला भैया ये निर्दोष है, प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को किसी चोट को कारित करते हुए देखा गया। उनने सही बात बोली, उनने क्या बोली, उनने बोली कि आपको चाकू मारा है ना,
आपको चाकू मारा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसको देखा किसने, सी ने देखा ना। पहली बात यहाँ पे कट हो गई इनकी। दूसरी चीज, रासायनिक परीक्षण के प्रयोग में, मतलब जो आपका ये वाली चीज है, उसमें बताया कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर भैया चाकू पे ब्लड पाया जा रहा है और चाकू पे ब्लड ह्यूमन का है, तो डीएनए टेस्ट हुआ होगा कि आपका है कि नहीं है, 100% हुआ होगा। तो वो बोल रहे नहीं, आपका केमिकल जो एग्जामिनेशन होगा उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। ये विश्वास आपके लिए क्या नहीं है, कन्विक्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये वाली चीज भी क्या है, वेरीफाइड नहीं है। ये वाली चीज भी क्या नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। तो एक तरीके से ये भी जा रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि अभियुक्त 20 वर्ष की आयु का है। कितने साल का है, 20 साल का है, और अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है, तो पुरानी शत्रुता के कारण अलिप्त किया। ये कोई बात होती है क्या कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा चाकू लेके गया, वो भी 20 साल का। चलो आईपीसी में अगर आप डिफेंस ले भी लेते तो डिफेंस में क्या लिखा, 7 से 12 लिखा कि नहीं लिखा, या 7 साल से कम, तो मान सकते थे। तो मतलब अधिवक्ता ने एक ही चीज अकेली बोली है कि व्यक्ति वो क्या है, निर्दोष है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको इसमें समझ क्या आया ये बताओ। अभी तो मेरी हाँ में और ना में मिला रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसको कन्विक्शन करना है या एक्विटल करना है, सोचो और बताओ। आपके सामने पूरी चीजें मैंने पढ़ी, सबको एनालाइज किया। दोष सिद्ध करना है तो क्यों, और आपको नहीं करना तो क्यों, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रख लो। लो आ जाओ।